Hello students, myself Devesh Singh from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, this time we are proceeding the new chapter. This is a poem named The Bal Poem. This is a very interesting poem and having a lot of morals composed by John Berryman. John Berryman is a poet especially famous for moral values. In his poem, you will get many moral views that is very beneficial for the student. Now let's see the poem Ball Poem. A boy loses a ball, he's very upset. A ball doesn't cost much. The poet says that here, this is the theme of this chapter, that a boy loses the ball, and at that time he is so disturbed, so upset when he lost the ball. And a ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another. कह रहे हैं कि जो बॉल की कीमत है वो कीमत तो अधिक नहीं है, और नहीं इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर द बॉय टू बाई अनदर बॉल. व्हेन व्हाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. फिर आखिर जब बॉल दूसरा खरीदना भी कठिन नहीं है, बॉल की कीमत भी अधिक नहीं है, तो फिर बच्चा जो है इतना परेशान क्यों है. Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. इसलिए देखने के लिए कविता को जो है पोयम को हम पढ़ेंगे कि फाइनली व्हाट द बॉय हैज लॉस्ट और व्हाट द बॉय लॉस्ट एंड हाउ मच ही लर्न the experiences after losing something in his life. Let's see. What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? The poet John Berryman says that what is the boy? What is the boy now? What is the reality? What is the value of the boy who has lost his ball? जिसने बॉल खो दिया है. ओ लड़का क्या है, लड़का अब क्या है जिसने बॉल को खो दिया है. What is he to do? और उसे अब क्या करना है, उसे अब क्या करना है. I saw it go merrily bouncing down the streets and then merrily over. The poet says that what the boy has to do, and I saw it go. I saw it go. The poet says that he has noticed that the ball was going bouncing very happily down the streets, and then very happily, merrily over there it is in the water, and very happily finally the boy is into the water. No use to say, oh, there are other balls. Boy says that अब कि लड़के को अब यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है. No use to say, अब उस लड़के को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि there it is in there are other balls, कि और भी balls हैं. इसका कहने का कोई मतलब नहीं है. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. क्या कर रहे हैं कि an ultimate shaking grief fixes the boy. काफ़ी लड़के को हिला देने वाली, झकझोर देने वाली जो दुख है, वो दुख बच्चे के अंदर है. जो बच्चा बिल्कुल हिल गया है, कांप गया है. All his days into the harbor where his ball went, and बच्चा जो है ट्रेम्बलिंग करते हुए जो बच्चा उस हार्बर में अपनी बॉल को देख रहा है,
वो देखते देखते बिल्कुल जो बच्चा है वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, उसकी माइंड उस चीज़ पे कंसंट्रेट हो गई है, उसकी दिमाग जड़ बन गया है, अर्थात वहाँ से उसका माइंड अब डाइवर्ट करना आसान नहीं है। ही हैज़ fixed his mind at the particular point at that in the particular harbor where he has lost his ball. I would not intrude on him. Intrude means होता है to enter forcefully. To enter forcefully. Now the poet says that I would not intrude on him. मैं जो है जहाँ वो बच्चे का गेंद गई हुई थी उसकी तरफ मैं उस बच्चे को फोर्सफुली नहीं कहूँगा, फोर्सफुली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बच्चा है वो बिल्कुल ट्रेम्बलिंग कर रहा है, वो वाटर की तरफ देख रहा है, उस स्टेयरिंग डाउन उसकी तरफ, उस बॉल उस वाटर की तरफ वो देख रहा है। और ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर हिज बॉल वेंट, और वो अपने यंग डेज को, अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है कि बचपन के सभी दिनों को याद करते हुए कि बचपन के दिनों को याद करते हुए कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं कभी उसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा, मैं उसको भी फोर्सफुली ऐसा नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, डाइम मीन्स होता है 10 सेंट, अमेरिका का पैसा जो है उसके बराबर, तो एक पैसा दूसरी गेंद उसके लिए बेकार है, अर्थात जो पैसा की बात है, डाइम ये जो पैसा है उसके लिए दूसरी गेंद के लिए बेकार है। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, एक पैसे से दूसरे बॉल को लेने की जो बात है ये उसके लिए बेकार है, क्योंकि उसकी तो अटैचमेंट, उसकी मेंटालिटी, उसका अट्रैक्शन उसी बॉल के साथ बना हुआ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, पोजीशन मीन्स संपत्ति, संपत्ति एसेट्स। बच्चा अब क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। नाउ ही सेंसेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस बच्चे को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस सांसारिक संपत्ति में, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स लोग तो जो हैं गेंद ले लेते हैं, लोग तो गेंद ले लेते हैं, एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और बॉल भी हमेशा खो जाती है, बॉल ले लेते हैं बॉल भी हमेशा खो जाती है। क्यों? क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, क्या कहता है कि पैसा तो बाहरी है। ही इज लर्निंग, और लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट आइज, और वो अपनी आँखों के पीछे पीछे खो जाने के ज्ञान को सीखता है। ही इज लर्निंग, सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपने उन आँखों के पीछे के द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खो जाने के ज्ञान को, अपनी ही आँखों के पीछे, अपनी ही आँखों के अंदर चीज़ों के खो जाने के ज्ञान को सीखता है कि कैसे व्हेन वी लॉस एंड थिंग्स आफ्टर दैट हाउ वी अगेन ट्राई टू गेट इट, तो इन चीज़ों को सीखता है। हाउ टू स्टैंड अप, और फिर से कैसे चीज़ों को खो जाने के बाद फिर से उसे हम कैसे वापस ला सकते हैं, कैसे स्टैंड कर सकते हैं।
इस चीज़ को भी वो सीखता है। नोइंग, यह जानकर, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि जो लोग हैं वो एक दिन कैसे, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। उस चीज को जानते हुए भी, knowing what every man, सब चीज़ों को, लोगों को जानते हुए भी हर एक को भी, मस्ट नो वन डे, हर एक को भी एक दिन जानना पड़ता है, एंड मस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग जानते भी हैं कि वो चीज़ हाउ टू स्टैंड अप, कैसे चीज़ कोई खड़ा होता है, किसी चीज़ को कैसे खड़ा किया जाता है, कितनी वर्क, कितनी प्रयास करने के बाद कुछ हासिल करते हैं, कोई नई चीज़ों को खड़ा करने का प्रयास करते हैं, एंड हाउ टू स्टैंड अप, और फिर कैसे सभी लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं। फाइनली लड़का इन सारी चीज़ों को सीखा कि कैसे जो है सब कुछ लॉस हो जाने के बाद हम फिर से कैसे सब चीज़ों को हासिल कर लेते हैं, कैसे फिर से स्टैंड कर लेते हैं। इस बड़ी एक मोरल वैल्यू को उस लड़के ने सीखा। मीन्स द बॉय हैज़ नो मोर dejection related to his ball, because he know that ball is not a very costly thing. He could buy another ball, but the memories related to ball, and when he realized that how much he has to again do the same to get new ball, he understand it. Means he understand the reality of this life, that if you have fallen in your life in by your failure, after that once again you do something new, so that you could again stand in your life to achieve your goal. So this is the big moral values here in this chapter, to understand the reality of this poem, as the chief reality of this poem is to again stand up, and again try to achieve the goal, because in this world your knowledge, the epistemology of loss will always provide you understanding how to stand against difficulties.